Hi everyone, welcome to S4 Sharnya Science classes. Today we are going to discuss about a very interesting topic, translation. Translation means the synthesis of protein, right? So that means mRNA, the informations in the mRNA can be converted into protein. Simply we can say that the protein synthesis. That process is termed as translation, right? So we have already learned that we are converted, right? So the DNA, the information, we have retrieved the information of DNA into the mRNA format. That process is called transcription. And now, according to the information, right, which is available in the mRNA, we are going to make the protein. So the process is known as translation, right? So first we have to understand what is that actually happening, right? So translation means it is a polymerization of amino acids, right, to form a polypeptide chain based on the sequence or the codons available in the mRNA. जो mRNA में हमारे available codons होती है उसका corresponding proteins बनाने वाली तरीका, right? So it's nothing but it's a polymerization of amino acid, right? That process is known as translation or the protein synthesis. Where it actually take place? So this actually take place in ribosomes, right? So we already know that ribosomes are known as the protein factory of the cell. So obviously वो protein synthesis ribosomes में होती है, right? Ribosomes की if you are checking the structure, you can see that it consists of structural RNAs and about 80 types of proteins, right? So ribosomes consist of different structural RNA and they have about 80 types of proteins are available, right? So these all are different that na combinations में बनती है, right? So ribosomes, it can act as a catalyst, right? So we have already discussed about different types of ribosomes in our class 11 and all. So hope you remember some of them, right? So 23S rRNA, ribosomal RNA in bacteria, right? It is the enzyme, right? Ribozyme, we can say that. And you can see that ribosomes, it can act as a catalyst. That means it can act as a biological enzyme, biological catalyst enzymes, right? So for the formation of peptide bond बनाने के लिए catalyst जैसा भी act कर सकती है. उसका एक example है हमारा peptide transferase, which is an enzyme, right, which is present in the large subunit of ribosome, right? It has a very important role. जब भी translation होती है तो एक अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड प्रोटीन दैट हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेयर इट इज एक्चुअली प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स. सो राइबोसोम हैव द कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑल्सो. दैट मीन्स इट कैन परफॉर्म एज ए एंजाइम ऑल्सो, द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. नाउ we have to understand what are the steps of translation. Protein synthesis की steps क्या क्या है, right? So protein synthesis include various steps, जैसे कि the first step charging of tRNA, right? The tRNA we have already learned about different types of RNA. उसमें से हमारा transfer RNA जो अमीनो एसिड को हमारा protein synthesis site में transfer करती है, वो RNA को पहले charge करना है. उसके बाद इनिशिएशन प्रोसेस, राइट? सो हमारा अमीनो एसिड बनना शुरू करना है, फिर उसका चेन इलोंगेशन, राइट? एंड आफ्टर दैट कितना पॉलीपेप्टाइड, राइट, कितना बड़ा पॉलीपेप्टाइड बनना है, उसके बाद उसको टर्मिनेट करना है द प्रोसेस को, देन द प्रोटीन्स विल बी रिलीज्ड, राइट? सो दैट प्रोसेस इज नोन एज टर्मिनेशन. सो वन बाय वन वी विल लर्न एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, राइट? द फर्स्ट स्टेप चार्जिंग और amino acylation of tRNA बोलती है, right? So what is actually happening here? You can see that the amino acid, right? You can simply see that हमारा जो ATP and एक enzymes, that means एक enzyme जिसका नाम है amino acyl synthetase, right? So amino acyl synthetase, ये एंजाइम एंड हमारा एटीपी ये दोनों ज़रूरी है ये प्रोसेस के लिए, राइट? सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट हमारा अमीनो एसिड, राइट, शॉर्ट में मैंने ए लिख लिया, वो अमीनो एसिड एक एटीपी एंड द एंजाइम, कौन सी एंजाइम? अमीनो एसिल सिंथेटेज, ये एंजाइम्स के साथ that ना mix करेगा, that means they will react together. Now हमारा amino acid become activated amino acid, right? That means they will form a special complex, activated amino acid complex, right? उसको हम बताती है amino acid, right?
AMP enzyme complex. So these all amino acid ATPO को यूज़ कर the enzyme amino acid synthetase यूज़ कर activated amino acid बनेगा, right? That means they will form a complex, a special complex. You can see that activated amino acid, right? उसके साथ साथ that's actually AA amino acid AMP enzyme complex बनेगा. Then उसके साथ that means ATP को AMP में convert कर दिया, right? So the inorganic phosphate will be released here, right? Now next step में क्या होगा, you can see that these actually these amino acid AMP enzyme complex, right, will be transferred into the tRNA, right? So that time you can see that amino acid tRNA की structure हमने learn किया है. So you can see that there will be amino acid binding site होती है, right? So this is the process. You can see that अभी हमारा amino acid AMP enzyme complex है, right? ये enzyme complex tRNA के साथ react करेगा. तो क्या करेगा, there is a amino acid binding site, acceptor site is there, amino acid acceptor site or amino acid binding site, right? So that time this actually amino acid tRNA synthetase will be in this format. That's why मैंने specially आपको mention किया है. अभी ये एक amino acid को इधर provide करेगा. That means ये complex से ये amino acid will go and bind into the tRNA amino acid site. So now this will be, you can see that amino acid tRNA में bind हो गया, right? So here you can see that amino acid tRNA that ना structure बनेगा. This is, you can see that amino acid tRNA बनेगा, right? फिर क्या होगा, हमारा already AMP enzyme है, ये इधर से release होगा. It's released free, right? So that's why we are termed it as a that ना enzyme that will be free from here. Now जो amino acid इधर tRNA में transfer हुआ है, what is the role of this? ये tRNA, that's actually the transfer RNA, right, has to transfer this amino acid to the site of protein synthesis. इसलिए तो इसका नाम transfer RNA है. So this is the next step. पहले एक्टिवेट कर दिया, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड चार्जिंग. उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए ट्रांसफर कर दिया. नाउ ये ट्रांसफर दैट मीन्स ये टीआरएनए ये अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस की साइट में जाकर ट्रांसफर करेगा, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नीड्स एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटीपी, दैट्स एक्चुअली द एक्टिवेशन, राइट. तो इधर यू कैन सी दैट अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड. क्या होती है अमीनो एसिड एटीपी, राइट, बना लिया ना इधर अमीनो एसिड एंड एटीपी. दे लिंक टू देयर दैट ना कोग्नेट टीआरएनए, इसके साथ हमारा टीआरएनए के साथ ज्वाइन करेगा, विच विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस, एक एंजाइम है, राइट. इसकी प्रोसेस, इसकी प्रेजेंस में दिस ट्रांसफर विल ऑकर. ये पूरा प्रोसेस को हम बताती है टीआरएनए बिकम चार्ज्ड, द एक्टिवेशन ऑफ दैट ना अमीनो एसिड, और यू कैन सिंपली से दैट चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, कैसे भी आप बता सकते हैं, राइट. सो पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होती है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए. तो एंटायर प्रोसेस को हम बताती है हमको अमीनो एसिड की बनाने वाले प्रोसेस को इनिशिएट करना है, शुरू करना है ना. सो दैट स्टॉप इज दैट एक्चुअली कॉल्ड दैट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. दैट मीन्स इनिशिएशन. ये प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत सारी एक्चुअली वी कैन से दैट पहले असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट होती है, उसके बाद एमआरएनए आकर अटैच करेगा, देन ओनली द प्रोटीन सिंथेसिस और पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस शुरू होगा. तो द फर्स्ट प्रोसेस जो बोल रही है दैट्स एक्चुअली द असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट है. ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में यू कैन सी दैट इट विल बी ए लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट की फॉर्म में होती है. तो पहले ये दोनों को जाकर दैट मीन्स हमारा लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट को आकर एक साथ बाइंड करना है, जिसके बीच में एक एमआरएनए भी आ जाएगा, राइट. सो दैट्स एक्चुअली कॉल्ड असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, राइट. तो क्या होती है इधर large subunits binds to the small subunit to form initiation complex. Now only ये दोनों राइबोसोम्स आकर अटैच हो गया तब भी इनिशिएशन शुरू होगा. सो दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, राइट. तो अनदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर, ये जो हमारा लार्ज सब यूनिट है, राइट, ये लार्ज सब यूनिट में कुछ स्पेशल साइट्स होती है, राइट. सो यू कैन सी दैट दिस लार्ज सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ, यू कैन सी दैट अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट, और यू कैन सिंपली से दैट ए साइट, जिधर हमारा अमीनो एसिड आकर, यू कैन सी दैट दिस इज अमीनो एसाइल, राइट, साइट, और अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट. दैट मीन्स हमारा वो जो टीआरएनए में जो अमीनो एसिड है ना वो आकर इधर ही बाइंड करेगा, राइट. सो दैट्स एक्चुअली द साइट, राइट.
उसके अलावा यू कैन सी दैट देयर आर 2 अदर साइट्स अदर, द अदर साइट यू कैन सी दैट वन इज द पी साइट, राइट। ये पी साइट को हम पेप्टाइड साइट, पेप्टाइड, राइट, पेप्टिडाइल साइट बोलती है। दैट मीन्स यू कैन सी दैट इधर टोटल पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, राइट। सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस साइट। नाउ द लास्ट, द थर्ड साइट जो बता रही है, दिस इज द ई साइट, राइट। सो ई साइट में यू कैन सी दैट दिस इज एक्सिट साइट, ई साइट और एक्सिट साइट, इधर से हमारा टीआरएनए निकलती है, राइट। सो टीआरएनए एक्सिट, राइट, फ्रॉम हियर, ये साइड से। दैट मीन्स एक बार हमारा पेप्टाइड फॉर्मेशन वगैरह हो गया तो टीआरएनए आती है इधर, राइट, फिर इधर एक्चुअली बाइंड कर देती है, देन उसका पेप्टाइड फॉर्मेशन होती है, उसके बाद टीआरएनए इधर से बाहर निकलती है। सो दिस इज ई साइट इज एक्चुअली द एक्सिट साइट, राइट, राइट। सो दैट मीन्स हमारा लार्ज सब यूनिट में 3 यूनिट्स, 3 साइट्स होती है। यू कैन सी दैट 1 ए साइट, 1 पी साइट, 1 ई साइट, यू हैव टू रिमेंबर दैट, राइट। तो अगेन मैंने बता दिया था ये 2 सब यूनिट्स विल असेंबल टुगेदर एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ओनली, राइट। Now you can see that initiated tRNA, right, जिसके साथ, जिसके पास हमारा फर्स्ट दैट ना व्हाट इज ए स्टार्ट कोडोन और स्टार्ट अमीनो एसिड वी कैन से द मिथियोनिन होती है, राइट। हमने ऑलरेडी बता दिया था इधर एक्टिवेशन वगैरह होती है। ये सेम वे में यू कैन सी दैट फर्स्ट जो है, फर्स्ट सिंथेसिस है, जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है, मिथियोनिन इज द फर्स्ट एंजाइम दैट ना प्रोड्यूस होती है, बिकॉज मिथियोनिन, राइट, यू कैन सी दैट इट इज द एक्ट दैट ना स्टार्ट कोडोन है, राइट। अमीनो एसिड को एक्टिवेट, मिथियोन को एक्टिवेट करेगा, सेम वे ऑफ एक्टिवेशन है, राइट। बट हियर जो मिथियोनिन बना रही है दैट्स एक्चुअली एफ मेथ बोलती है इसको, एफ मेथ, राइट। यू कैन सी दैट फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन है, राइट, दैट्स ओनली द डिफरेंस। बाकी एंजाइम ऑल अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द सेम वे, एक्टिवेशन जो अभी हमने बता दिया तो वो सेम वे है, बट इधर जो मिथियोनिन बना रही है वो थोड़ा सा फर्क है, दैट्स एक्चुअली एफ मेथ, फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन बनाती है, राइट, दैट्स ओनली द डिफरेंस इज, राइट। सो क्या होती है, द इनिशिएटेड टीआरएनए जिसके पास हमारा एफ मेथ होती है, राइट। सो दैट्स एक्चुअली द कैरीज द मिथियोनिन अमीनो एसिड व्हिच विल बी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन, राइट। सो इट विल कम एंड बाइंड, तो इनिशिएशन शुरुआत होती है। तो अगेन आई विल टेल यू दैट हाउ इट इज एक्चुअली हैपनिंग, ये मैं रब कर रही सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, राइट। So here you can see that पहले जब शुरुआत होती है, so that time you can see that the tRNA, right, so which carries that na methionine will come and bind with P साइट। हमने ऑलरेडी बता दिया दिस इज द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, बट ये क्यों पी साइट में आकर बाइंड कर रही है, बट दिस इज द स्टार्टिंग, राइट। तो स्टार्टिंग में इनिशिएशन करने की टाइम में यू कैन सी दैट हमने पहले असेंबली बता दिया था, उसके साथ साथ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, द एमआरएनए, अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस। तो असेंबली की टाइम में बड़ा सब यूनिट छोटा सब यूनिट से ज्वाइन करने के वक्त उसके बीच में एक एमआरएनए भी आ जाती है, राइट। देन यू कैन सी दैट द इनिशिएशन होती है, राइट। तो मैंने क्या बता दिया था, पहले हमारा जब शुरुआत स्टार्ट कोडोन, राइट, यू कैन सी दैट। सो ये पी साइट में आकर जिसके पास जो टीआरएनए है, जिसके पास हमारा अमीनो एसिड मिथियोनिन एफ मेथ है, राइट, इट विल कम एंड बाइंड इन द पी साइट, राइट। सो पी साइट में क्या करेगा, हियर यू कैन सी दैट what will say first code, right, going to read by the tRNA. So here you can see that the F meth containing tRNA will come and bind at the P site, right. So either you can see that there will be anticodon arm will be there which will read that हमारा कौन सी anticodon, इधर AUG है तो anticodon में कौन सी हो जाएगा UAC. So this UAC will read that, right, recognize that, and which will act as the AUG, this is actually acting as the start codon. तब हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होगा, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट कोड इज गोइंग टू रीड बाय द टीआरएनए. सो उसी टाइम इट विल ब्रेक द मिथ्योनिन, राइट. सो दिस एफ मेथ कंटेनिंग टीआरएनए विल गो एंड बाइंड एट द पी साइट and you can see that the anticodon arm in the tRNA, ये है हमारा स्टार्ट कोडोन AUG. तो उसको anticodon arm रीड करेगा. उधर you can see that the methionine production it will act as that start codon, right. So all other tRNA जो है बाकी जो है इधर P साइट में नहीं आएगा, it will come and bind with the A साइट. So amino acid acceptor साइट में आकर बाइंड करेगा, right.
then mRNA will start moving, right? So उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, that we will understand next. तो क्या हो रही है, you can see that the initiated tRNA जो है हमारा जो बोलती है, so here you can see that the initiated tRNA, right? So here, right? So here you can see that the initiated tRNA will come and bind at this site, right? देख लो इधर बाइंड कर दिया जिसमें UAC, right? The anticodon arm में UAC है, तो ये रीड कर दिया, right? So what is that? Here you can see that methionine है, right? So initiated tRNA initiate कर दिया प्रोसेस को. Now the remaining tRNA will come and bind at the A site, right? इधर आएगा, right? So then remaining mRNA में जो प्रोटीन है, कोडोन है, उसके corresponding proteins will come and join here. It will start mRNA धीरे धीरे मूव करेगा, right? So एक बार नेक्स्ट प्रोसेस हमारा इलोंगेशन प्रोसेस, व्हाट विल हैपन, तो फर्स्ट इनिशिएशन तो हो गया, राइट? नाउ सेकेंड अमीनो एसिड tRNA बाइंड्स टू द ए साइट ऑफ राइबोसोम, राइट? मैंने बोला फर्स्ट इनिशिएशन की टाइम ओनली इट विल कम एंड बाइंड द पी साइट. सेकेंड जो आरएनए यू कैन सी दैट tRNA विल कम एंड एट द ए साइट, ए साइट में आ गया. नाउ यू कैन सी दैट इसका ए साइट में आ गई. सो इट्स एंटीकोडन बाइंड टू द सेकेंड कोडोन, इसका एंटीकोडन जो है वो सेकेंड कोडोन ऑफ mRNA में बाइंड करेगा. then corresponding amino acid will be there, you can see that. then it will make the same time में, right? it will make a peptide bond also, you can see that, right? तो इधर F meth है, right? methionine और F meth we can see that, right? so here next amino acid आएगा, right? whatever the amino acid corresponding to the mRNA, right, will come and इधर आ जाएगा, the right, you can see that. तुरंत you can see that peptide bond इधर से you can see that P side से peptide bond formation भी occur, right? so the peptide bond is formed between the first and the second amino acid in the presence of one enzyme which is called the peptide transferase. इसका presence में which is present in the large subunit of ribosome, इसका presence में उसका polypeptide formation, that means peptide bond formation भी take place होगा, right? now you can see that अभी द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट्स tRNA आर ब्रोकन, तो पहले इसका इधर से काम हो गया, राइट? नाउ नेक्स्ट अमीनो एसिड को आने के लिए ये साइट फ्री होना चाहिए, राइट? सो व्हाट विल हैपन, ये साइट फ्री होना है, देन दिस विल बी हैव टू मूव टू द पी साइट, राइट? सो इसलिए इसको इधर से ये tRNA सो इधर से निकालना है, दैट tRNA ये अमीनो एसिड से ब्रेक करेगा एंड विल बी एक्सिट थ्रू द एक्सिट साइट, राइट? सो ये ई साइड से ये tRNA जो पहले फर्स्ट हमारा मेथियोनिन के दटना बॉन्ड बनाया था उसको ट्रांसफर कर आए थे, वो tRNA उधर से निकल आएगा एंड इधर ये मेथियोनिन एंड द नेक्स्ट अमीनो एसिड विल फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन, the tRNA removed from the P site, right, through the E site, and the second tRNA, right, second tRNA of that A site will be pulled, right? वो उसको इधर खींचेगा, pulled to the P site along with the mRNA. तो इधर tRNA भी साथ जाएगा, उसके साथ साथ हमारे mRNA भी इधर आ जाएगा, राइट? सो इसी प्रोसेस को हम बताती है ट्रांसलोकेशन. देख लो, यू कैन सी दैट व्हेन द tRNA इज पुल्ड हियर, द सेम टाइम में हमारा mRNA इज ऑल्सो पुल्ड. सो यू कैन सी दैट धीरे 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 mRNA इज स्लाइडिंग, राइट? सो दिस प्रोसेस, दिस ऑल प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर अदर कोडॉन्स इन mRNA. तो इधर अभी इधर ये दटना व्हाट विल से फर्स्ट ए साइट में जो अमीनो एसिड tRNA था उसको पी साइट में ले लिया, पी साइट वाला बाहर निकल गई, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट tRNA आएगा, ए साइट में बाइंड करा है, सो दैट टाइम इट विल कोड रीड फॉर दिस वन, राइट? तो उसका रिस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड बनेगा, राइट? यू कैन सी हियर, राइट? सो नेक्स्ट ये tRNA मेथियोनिन बन गई, वो रिलीज हो गया, नेक्स्ट अमीनो एसिड आ गई इधर, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट दैट विल बी कमिंग हियर, नेक्स्ट अमीनो एसिड बनेगा, तब ये इधर इधर दटना पी साइट में है, अगेन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट? सो ये इधर खींचेगा, दैट मीन्स इट विल बी एक्सटेंड, धीरे धीरे एक एक अमीनो एसिड आएगा, ये सारा प्रोसेस रिपीट करती जाएगा. ये अमीनो एसिड पी में आएगा, पी से वो tRNA निकलाएगा, अमीनो एसिड विल फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा, देन उसको इधर खींचेगा, पी साइड से आएगा, पी साइड से वो ई साइड से बाहर निकलाएगा tRNA, तो अमीनो एसिड की पेप्टाइड बॉन्ड मिल, धीरे धीरे ये चेन बढ़ती जाएगा. You can see that, right? So the total you can see that same time में ये mRNA को इधर से धीरे 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 वो खींच कर जाएगा. तो you can see that the mRNA is actually moving, sliding over the ribosomal subunit. इसलिए ये total process को हम translocation बोलती है, right? So that means you can see that during this translation ribosomes move from
कॉडोन टू कॉडोन, तो एक एक कॉडोन से वो स्लाइड कर कर जाएगा, राइट। जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, जब तक हमारा टर्मिनेटर, दैट मीन्स एक्चुअली टर्मिनेशन फैक्टर, यू कैन सी दैट्स एक्चुअली हमारा स्टॉप कॉडोन। वी ऑलरेडी लर्न दैट टीआरएनए में हमारा कोई सा भी दैट ना स्टॉप कॉडोन कुछ भी नहीं है, राइट, दैट विल बी प्रेजेंट इन द एमआरएनए ओनली, राइट। तो जब तक हमारा व्हाट विल से स्टॉप कोडॉन पहुंचाएगा एमआरएनए में, तब तक हमारे ये प्रोसेस कंटिन्यू करती जाएगा। सो ये स्टॉप कोडॉन को कोड करने के लिए टीआरएनए के पास कुछ भी नहीं है, राइट। सो देयर विल बी अ रिलीज फैक्टर, राइट, विल कम एंड बाइंड टू दैट स्टॉप कोडॉन, दैट टाइम द ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगा एंड द पॉलीपेप्टाइड एंड द टीआरएनए विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द राइबोसोम्स। तब ये हमारा दो सब यूनिट सेपरेट हो जाएगा, राइट। राइबोसोमल सब यूनिट विल बी डिसोसिएट, और जो हमारा पॉलीपेप्टाइड बन गया उसको उधर से रिलीज करेगा, राइट। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज known as the translation process, right. So one more thing you have to remember here, a group of ribosome is actually associated with the single mRNA for the translation process, right. तो एक राइबोसोम नहीं है, उसके साथ बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस में जो राइबोसोम्स को हम पोली राइबोसोम्स और पोलीसोम्स बताती है, राइट। अब इसके अलावा वन मोर थिंग यू हैव टू टेक दैट इफ दिस इज ए mRNA सीक्वेंस, देयर इज ए that are translated regions, right, upstream and downstream में you can see that there will be additional sequence जिसका कोई translation नहीं होती है, but it's very important for the regulation of translation activity, right। और कितना efficiency होती है translation process की, वो regulate करने के लिए ये region बहुत important है, right। इसके बारे में you will learn in higher classes very detail, but you have to remember that there is a untranslated region, right, or UTR regions are present at both 5' end, that means before the start codon and that now after the start codon, means stop codon also, that's in the 3' end, upstream में और downstream में दोनों that area में you can see that it's a function क्या है पूछ लिया तो you can easily say that this is very much important for the regulation of translation activity और efficiency of that translation process, ये regulate करने में और बताने में this is very UTR region very important है। I hope you have a clear idea about that translation process. If you like the video, please share with your friends also and support me. Thank you all. Thank you so much.